sides. So join these two sides midpoint. As we join these two midpoints, we get distance D. Distance D will be what? 5 minus minus plus 3. Y2 minus y1. X2 minus x1. Minus 3 minus 3. It will be minus 6. X2 minus x1 square plus y2 minus y1. What is it? Minus 3 minus 5 minus 8 bracket square, and its a square root will be the distance formula. X2 minus x1 square. 6 square is 36. 8 square is 64. Square root of 36 plus 64, 100. That is 10. Distance D is 10. D is half of BC. BC will be 20. That was our answer. So 20 was the answer for this question. Last question. We had given a last question here in the last session. Now when we solve any problem, we are using two conditions. Okay. In this problem, the one condition was distance, and another condition, it was depend on your geometrical condition. Now again we have some more questions like this. Same thing is there. You are given three vertices A, minus 1, 3 of triangle ABC. B, 1 minus minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. Vertex C, 5, 1. These are the three vertices, 5, 1. Vertices of triangle ABC. These are the vertices of triangle ABC. One of the triangle ABC is there, minus 1, 3, 1, minus 1, 5, 1. And from these vertices, there may be so many questions with given vertices of triangle. The question may be area of triangle, whatever may be the question. But here today we have a question. What is the length of median through A? Length of median through A. What is the length of median through A? It is our question. The length of median through is our question. The length of median through A. Your the options 7, 6, 8 and 5. Answers are 7, 6, 8 and 5. These are the four answers. One of the answer is there. 7 या 6 या 5 या 5. These are the four options. How will you solve this problem? You are given ABC are the vertices of a triangle, and it is to find the length of the median through. Length of the median. बहुत जल्दी solve किया देखेंगे. See here, this is a triangle ABC. We have the three vertices, minus 1, 1, 1, minus 1, 5, 1. How will you find the length of median? Length of median find करनी है. Length of the median through A से जाने वाली median, समझे point A ऐसा इधर है. तो अरे सब आंसर आ रहे हैं. 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. चलो क्वेश्चन देख लिया है. minus 1, 3, 1, minus 1, 5, 1. These are the vertices of triangle and we have to find the length of median. Question तो देख लिया है. जाएंगे solution की ओर. See here, this is a triangle. कौन सा भी ट्रायंगल हो, वर्टाइसेस दिए है उसके, वर्टाइसेस से आपको डिसाइड करना है. ये एज अ कोऑर्डिनेट्स -1, 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. 1, -1 B. This is point B, and C has a coordinate 5, 1. 5, 1 are the coordinates of point C. So -1, 3, 1, -1, 5, 1. And it is asked to find the median. Yeah, median. This is the median AD. You have to find the length of median AD. This is our question, length of median AD. Simple. Distance formula करो.
देखेंगे देखेंगे 5 + 1 6/2 3 मिड पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 - 1 0 तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 3,0 अगर ये ऐसा लिया तो अब -1 3 एंड 3 0 का डिस्टेंस लो 3 + 1 4 16 और 3 9 पाई आंसर बराबर है सो ये एडी लेंथ फाइंड करना है आपको एडी एडी विल बी द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए -1 और 3 3 + 1 4 x2 - x1 4 square 0 - 3 that is -3 square its square root is that is 5 4 and 3 triplet yes 5 बहुत फास्ट आंसर आया था 5 मीडियन थ्रू ए वेरी गुड वेरी नाइस देखो बाकी लोग इट वाज अ मीडियन थ्रू ए पहले बीसी का मिड पॉइंट फाइंड करो और एडी का डिस्टेंस फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला इधर पहले फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला 5 + 1 6/2 3 1 - 1 0 0/2 0 3 0 and -1 3 these were the 2 points find their distance formula से वो आया है 5 that was our question median through A so आपके लिए median through B median through C ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर what is the length of median through A median through B median through C what is the centroid of triangle अभी क्वेश्चन आया है अभी बनाया हमने what is the centroid of this triangle what are the coordinates of centroid of triangle इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट बताओ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल -1 3 1 -1 5 1 व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट नहीं एक्स कोऑर्डिनेट गलत हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट भी बताओ व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट 5/3 एक्स कोऑर्डिनेट 5/3 वाई कोऑर्डिनेट 3 3/3 दैट इज 1 देखो x1 + x2 + x3/3 is a x coordinate of centroid 5 - 1 + 1 that is 5/3 that is 3 5/3 x coordinate 1 3 and -1 it is 3 3/3 that is 1 so 5/3 comma 1 is the x coordinate and y coordinate of the centroid of the triangle centroid of triangle हमें सेंट्रोइड मिड पॉइंट यहाँ तक ही सिलेबस है मिड पॉइंट के लिए डी डी का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे ये बीसी का मिड पॉइंट होता डी और एडी डिस्टेंस पहले क्वेश्चन के लिए अभी हमने पूछा था सेंट्रोइड सेंट्रोइड क्या होता है तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3 यस तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3 विल बी द सेंट्रोइड्स वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3 centroid of a triangle the formula is used here to solve this problem फॉर्मूला में जाइए वो फॉर्मूला क्या था सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल सो बहुत सही क्वेश्चन है मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी कल हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन ले लेंगे डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हर एक साइड का दिया है ए बी का बी सी का और ए सी का मिड पॉइंट्स दिए -1 3 -2 4 and the third point is 2, -5 पहला ए बी का मिड पॉइंट है ये बी सी का है और ए सी का है रिस्पेक्टिवली देन इट इज आस्क्ड लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू बहुत सही क्वेश्चन है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ए से जाने वाले मीडियन का लेंथ पूछा है
midpoints of side AB, BC and AC are given of triangle ABC. -1 3 -2 4 and 2 -5. -1 3 -2 4 and 2 -5. These are the midpoints of the triangle and it is asked to find the length of the median through A. ये डिस्टेंस फॉर्मूला का एक क्वेश्चन था अभी. ए से जाने वाला मीडियन, बट हमें दिए मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हैं. यू आर गिवन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. देखिए, वी विल फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल जिसके मिड पॉइंट दिए -1 3 -2 4. पहला ए बी का मिड पॉइंट है -1 3, ए बी का मिड पॉइंट है. फिर -2 4, लास्ट है 2 -5. midpoint of AC, AB, BC and AC. These are the sides. ऐसे डायग्राम में कभी भी एक रफ स्केच में ट्रायंगल ड्रॉ करने का और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम चाहिए तो सॉल्व करने का. अगर नहीं है तो आगे दूसरे किसी क्वेश्चन की ओर जाइए. एक क्वेश्चन में रुकना नहीं. सो दिस इज द साइड्स ABC, ट्रायंगल ABC के AB एंड BC एंड AC. ये मिड पॉइंट दिया है. दिस इज द मिड पॉइंट -1 3. another midpoint is given -2 4. और ऑर्डर से लेना है ए बी बी सी और ए सी. दिस इज अ 2 -5, 2 -5. एंड नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन. एडी से जाने वाले मीडियन का लेंथ हमें फाइंड करना है. सो इट इज आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी. मैं आपको कुछ ऑप्शन बताता हूँ. ऑप्शंस आर 5√5. ऑप्शन बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन बी. एक दो प्रॉब्लम ऐसे लीजिए, दिन में एक ऐसा प्रॉब्लम लीजिए जो आपके लिए नया है. आपके पास बहुत सारे बुक हो गए तो 5√5. मैंने भी आपको कुछ प्रॉब्लम दिए थे पिछले किसी इसमें लेक्चर्स में, दूसरे चैप्टर्स में. वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते बैठिए. अगर नहीं आया तो भी ट्राई करो. व्हेन यू ट्राई वन प्रॉब्लम, आप जब एक प्रॉब्लम को ट्राई करते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज करते हो और वही कंसेप्ट आपको यूज करने हैं एग्जाम में. प्रॉब्लम रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट आर रिपीटेड. 5√5 एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है √53. √53. ऑप्शन सी जो है ये प्रॉब्लम अलग है. √338. ऑप्शन डी जो है 5√2. हमारा सब ज्ञान हम इधर यूज करेंगे. 5√2, ये 5√5 है. ओके, दीज आर द ऑप्शंस. कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्राइंगल हैविंग द साइड्स. तो ये मिड पॉइंट से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हो? व्हाट कैन वी फाइंड? हमें क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए से जाने वाली मीडियन का लेंथ हमें फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ मीडियन? अगर हमें मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, देखो मैं आपको बहुत सारे हिंट दे रहा हूँ. ये ज्वाइन किया तो ये ज्वाइन करने के बाद हमें नया ट्रायंगल मिलता है. दिस इज अ न्यू ट्रायंगल. दिस इज अ न्यू ट्रायंगल. दिस इज अ न्यू ट्रायंगल. अब इसमें तीन कंसेप्ट यूज होने वाले हैं. पहला, ये दोनों ट्रायंगल का सेंट्रोइड जो होता है सेम होता है. पहला कंसेप्ट, ये मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला है और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम होता है. दोनों का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट सेम होते हैं. तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ये मिड पॉइंट के ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालो. तो आपको ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, दोनों का सेंट्रोइड सेम होता है. सो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन करो. मुझे बताइए व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इन न्यू ट्रायंगल. और पहला ट्रायंगल दोनों के सेम है, तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड? एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ. ऐसे बहुत सारे वे, सिंपल वे भी है.
x coordinate 2 minus 1 1 1 minus 2 minus 1 by 3. Yes, x coordinate is minus 1 by 3. तीनों का x coordinate का addition minus 1 by 3. So minus 1 by 3 is x coordinate. Nainish, what is y coordinate? ऑप्शन है ना, ये क्या ऑप्शन? ऑप्शन बाद में देखेंगे. 5 root 5 root 53 root 338 5 root 2 2 by 3 2 by 3 x coordinate of centroid. अब ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, सेंट्रोइड और ये पॉइंट का. बराबर है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है -1/3 एंड 2/3. सेंट्रोइड के सामने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, इसका निकालो, ये निकालो, अभी ये लिया हमने ऐसा, तो ये डिस्टेंस निकालो सेंट्रोइड के सामने का. निकालो -1/3 2/3 और किसी भी मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, किसी भी. मैंने -2 4 लिया है, लिखो -2 4 और इसमें डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए. हमको ए से चाहिए, तो -2 4 -1/3 2/3. कैलकुलेशन करो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में आएगा तो भी चलेगा. फ्रैक्शन में इंटरेस्टिंग है, सब इंटरेस्टिंग है भाई मैथमेटिक्स. ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपको 10th लेवल का. आगे 11 12 में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है. क्या ये एसपीआई हम साल में एक भी बार पढ़ाते ना, एक ही बार पढ़ाते हो. अभी अगले साल ही देखेंगे इसको, लेकिन 11 12 हम तो हर रोज पढ़ाते हैं, 24 आवर वही रहता है. उसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लाते हैं. हमारे साथ जुड़े रहिए. So -2 -1/3 4 and 2/3. ये डिस्टेंस क्योंकि ये रेशियो 2:1 है, तो ये वो पूरा टोटल 3 होता है. बहुत सिंपल है. सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. आप समझने वालों को इशारा काफी होता है. ये 2:1 है ऐसा, तो ये डिस्टेंस निकालो और इसका ट्रिपल करो. 2 + 1 3, तो ट्रिपल करना होता है. सो आपको मिल जाए लेंथ ऑफ मीडियन एडी. दिस इज a hint of this problem. So -2 and -1/3 का 4 and 2/3 कैलकुलेशन करो. स्क्वायर रूट में भी आ सकता है, लिख के रखो. सेंट्रोइड से किसी एक मिड पॉइंट की ओर जाइए, वो डिस्टेंस ट्रिपल करो. आपको, आप ये मिड पॉइंट के साथ ले रहे तो आपको ये मीडियन मिलेगा, ये मिड पॉइंट के साथ लेंगे तो आपको ये मीडियन मिलेगा 3 मल्टीप्लाई करके, और ये मिड पॉइंट के साथ रहे तो आप सी से मीडियन मिलेगा. ऐसा है, ये लॉजिक है. लॉजिक नहीं, ये फैक्ट है, फॉर्मूला ही है. -2 -1/3 -2 + 1/3. लेट मी सी, 1/3 इसका स्क्वायर, -2 + 1/3 माइनस माइनस, -6 + 1 -5/3 25/9 प्लस 2/3 -4 -2 + 1/3. वैसे 4 - 2/3 4 - 2/3 3 4 12 -2 10/3. that is 100/9 125/9 125/9 3 आएगा बाहर, √125. इसको अपॉन 3 1/3. देखो ये स्क्वायर रूट में 5 नहीं है, 5√5 होगा. ऑप्शन ए 5√5. देखो 125, ये डिस्टेंस निकाला ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो √9 का होगा 3 और ये होगा √125. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, हमने अभी बताया था, तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे. √125 मतलब 5√5 इज योर आंसर. कैसे लगा आपको क्वेश्चन? ओके, चलो हम जाएंगे आगे. बहुत सही, गुड.
यस, चलो आगे के एक आधा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी टाइम है अपने पास। हर क्वेश्चन में हमें कुछ, कभी भी याद रखो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते। आपके पास कंसेप्ट चाहिए। मराठीत सांगतो, संकल्पना लागतात आणि त्याला एक लॉजिक लागतं, कोणती आधी वापरायची। कोणी शिकू शकतं, कोणी करू शकतं। एंड यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। अब तो बहुत आगे की जनरेशन हो। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव दिस इज अ P12 क्यूब। सिंपल क्वेश्चन है, 4 6 कर लिया था हमने। एक R 5 7 and S AB. These are vertices of parallelogram. All the four vertices of parallelogram. आप समझ में आया, आपको समझ में आया क्या फाइंड करना है? Then what are the values of AB? ये हमारा क्वेश्चन है। A equals to what and B equals to what? ऑप्शन नहीं देंगे, अभी आपको सॉल्व करना है। कल हमने ये क्वेश्चन लिया था, तुरंत बताइए आंसर। वेरी गुड। A2 3 A2B3 कैसे करना? PQRS में ऑड लेना है, ऑड ऑड पहला तीसरा और दूसरा चौथा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन सेम रहता है। 1 + 5 6 एंड 4 + what 6, 4 + 2 6, तो ये इज 2। फिर 2 + 7 9, तो 6 + what 9, दैट इज 3। सो 2 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB। एक ए का कोऑर्डिनेट्स 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स 3। कल का एक क्वेश्चन है, वही इसी को रिपीट किया हमने। ओके these were the problems on your coordinate geometry। distance formula, somewhat section formula तो नहीं आया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के ऊपर, या ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। अभी हम स्ट्रेट लाइन का कुछ पार्ट शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कल हमने लिया था उससे क्वेश्चन ले लेंगे स्ट्रेट लाइन पे। वी आर टेकन सम क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइन यस्टरडे, धीरे धीरे। सो स्ट्रेट लाइन में कुछ फॉर्मूला हम देते हैं आज। वी आर गिवन दिस, यस। स्ट्रेट लाइन में हमने 4 इक्वेशन दिए थे कल, 4 इक्वेशंस। पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। These are the 4 interesting equations while finding the equation of line. When you were given the equation of line contains the variable x and y. आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो समझो आपके पास 2 पॉइंट्स है, 2 3, 2 3 is a point। Let us consider this is point 2 3, x coordinate 2, y coordinate 3, ऐसा एक पॉइंट है।
और यस 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 2 3 और हम ले रहे हैं एक पॉइंट x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 5 4 5 y कोऑर्डिनेट -5। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ओके देखिए x1 y1 x2 y2 इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं लेंथ डिस्टेंस मिड पॉइंट। आगे क्वेश्चन आता है अब ये जो x एक्सिस है ये x एक्सिस इस सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट ए है पॉइंट बी नाम दिया है। सो हाउ द x एक्सिस डिवाइड्स segment AB in the ratio, what is that ratio? Let me write the coordinates 4 -5। टाइम कम है इसलिए मैंने अभी बनाया ये प्रॉब्लम चलते चलते कंसेप्ट लेने के बजाय। 2 3 एंड 4 -5 कंसेप्ट भी मिल जाएगा उससे। अभी हम कहा mx2 प्लस mx1 प्लस mx प्लस m+1 ये कैसे नहीं करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो दैट x एक्सिस डिवाइड्स है ना। तो x एक्सिस डिवाइड्स कहता है तो समझो ये x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 0 है। x, 0 में डिवाइड x, 0 होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। इसको इस पॉइंट को हम डी कहेंगे। ए बी को इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस एट पॉइंट डी। तो इसका जो रेशियो है याद रखो जब आपको x एक्सिस के बारे में पूछा है x एक्सिस सेगमेंट को जब डिवाइड करेगा तो x एक्सिस के बारे में रेशियो का आंसर लिखना है -y1/y2 और y एक्सिस के बारे में पूछा है। अब ये y को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा अगर कर रहा तो वो भी करेंगे हम। तो y एक्सिस के बारे में पूछा है तो रेशियो कीप इन माइंड अगर y एक्सिस पूछा है तो -x1/x2 करना है डायरेक्ट। सो व्हाट विल बी द रेशियो हियर। ये भी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा x एक्सिस डायरेक्ट फॉर्मूला -y1/y2 द फॉर्मूला इज डायरेक्टली -y1/y2 डायरेक्टली। अब उसको चेक करके भी देख सकते हैं अगले एक लेक्चर में कितना होगा रेशियो फिर -y1/y2 सेगमेंट ए बी को 3:5 यस 3:5 इज आवर आंसर। उल्टा पूछा व्हाट इज द रेशियो यस यस बराबर है सही है 3:5 रेशियो है। उल्टा अगर है बी टू ए में पूछा है बी टू ए से हाउ इट विल डिवाइड सेगमेंट बी ए। अभी हमारा ए बी के बारे में क्वेश्चन था अभी बी ए तो 5:3 उल्टा यस। अब हमको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेशियो दैट y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट ए बी। तो y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट ए बी नहीं सेगमेंट ए बी को y एक्सिस के समय x कोऑर्डिनेट का लेना है नेगेटिव। सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। हाँ वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आता है। 1-2 मिनट रह गए। Some students may be confused but y एक्सिस के बारे में बट x एक्सिस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी कम टाइम बचा है। आज की प्रॉब्लम आपको कैसे लगे। फॉर y एक्सिस बताया ना मैंने -x1/x2
तो वाई एक्सिस इसको डिवाइड करेंगे -x1/x2 यानी -2/4 -2/4 यानी -1/2 -1/2 रेशो आएगा। -1/2 विल बी द रेशो। अभी आपके सिलेबस में वो थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा आगे गए हम। -1/2 यस -2/4 -1/2। पॉजिटिव रेशियो के लिए फ्रैक्शन निगेटिव नहीं, पॉजिटिव रेशियो के लिए वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ पॉजिटिव रेशियो के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच में चाहिए। पॉजिटिव रेशियो आने के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों के बीच में चाहिए। अगर वो पॉइंट बाहर है, ऐसा है देखो, ऐसा इधर इंटरसेक्ट करता है तो भी बोलते हैं ये भी कोई इंटरसेक्ट किया है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ऐसे केस में बाहर से जब हम सोचते हैं तो उसको कहते हैं निगेटिव इंटरसेक्शन, और अंदर से जब कट करते हो, अंदर से कट किया इसने, तो उसको ये आने वाला आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और बाहर से कट करने वाले को कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, और इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। हमारा सिलेबस ज्यादातर इंटरनल डिवीजन पे है। यस देखो, हमारे पास अगर सेगमेंट है, किसी भी सेगमेंट को, बहुत सही, ये सेगमेंट है हमारा, हम एक सेगमेंट कंसिडर करेंगे ये भी, इसको बीच में कोई इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर इसको बाहर से कोई डिवाइड करता है, बाहर से डिवाइड करना मतलब इसी लाइन के ऊपर एक आधा और एक पॉइंट है बाहर, किसी भी इधर या इधर, तो तब जब रेशो आता है वो निगेटिव आता है। उसमें नहीं जाएंगे हम, ये पार्ट नहीं हमारे सिलेबस का। बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के केस में वो आता है, तो आपको याद रखना है बस, एक्स एक्सिस कैसे डिवाइड करता है, -y1/y2।